کی سلامتی ہو۔ آج کے خوبصورت دن کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اس زندگی کے لیے، ان سانسوں کے لیے، اور خدا کے پاک روح کے لیے جو اس وقت یہاں پر موجود ہے، اور حکمت کی ان ساری باتوں کے لیے جو آج پاک روح نے ہمارے ساتھ کی ہیں۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یقیناً وہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے اور ہماری ساری ضرورتوں کو وہ اپنے کلام کے وسیلہ سے پورا کرتا ہے۔ جب اس کا کلام نازل ہوتا ہے تو وہ ہماری زندگیوں کے مطابق ہماری زندگیوں کے اندر سے ساری کمیوں کو دور کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور آج جتنی بھی ہم نے حکمت کی باتیں سیکھی ہیں ان کے لیے میں خداوند کا بڑا شکر ادا کرتی ہوں۔ جب روح کا روح کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے تو بے شک ہم اس جگہ پر موجود نہ بھی ہوں، لیکن وہ جو ایک رحلم ہے اس کو خدا ٹوٹنے نہیں دیتا۔ رات کو میں یہاں پر نہیں تھی، لیکن جو باتیں پاسٹر صاحب نے بتائیں اور بیٹی مسا نے بھی آج کلام کے اندر جو باتیں کی ہیں، ان سب کو مل ملا کر جو ہے نا واقعی ہم مسیح کا ایک بدن بن جاتے ہیں۔ اور ہاتھ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، ٹانگ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ جو ہے وہ کیا دیکھ رہی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اسی طرح سے ہم جہاں بھی ہوں، ہم ایک بدن ہے تو خدا جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے جوڑ کے رکھتا ہے، اور روح میں جو ہے نا وہ خدا ہمارا کنیکشن جو ہے وہ بنا کے رکھتا ہے۔ سب سے پہلے تو خداوند کا میں شکر ادا کرتی ہوں، اور پاسٹر صاحب کا بھی، کہ خداوند میں ہمیں آگے بڑھنے کا موقع دیتے ہیں۔ خداوند ان کو بہت زیادہ برکت دے، اور اس حکمت کی باتوں کے لیے جو خدا ان پر کھولتا ہے اور یہ پوری وفاداری کے ساتھ کلیسیا تک پہنچاتے ہیں، تاکہ کوئی بھی بات جو ہے وہ رہ نہ جائے جو ہم کہہ سکیں کہ ہم نے یہ سیکھا نہیں ہے۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں ان ساری باتوں کے لیے بھی، اور خدا کے کلام کے لیے بھی آج خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جب آج میں خدا کے کلام کو بیان کروں گی تو اس سے ہم سب جو ہے نا اس بات کو جانیں گے کہ واقعی روح میں ہمارا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، کنیکشن ہے۔ آج جب کہ بات ہو رہی ہے سارے پارٹ آف باڈی کی، تو ہمارے جسم کے اندر سبھی حصے جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ کوئی بھی حصہ جو ہے وہ الگ نہیں ہے کسی دوسرے حصے سے۔ ہاتھ جو ہے وہ پاؤں کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں تیرا محتاج نہیں ہوں، نہ ہی آنکھ جو ہے وہ ناک کو کہہ سکتی ہے کہ میں تیری محتاج نہیں ہوں۔ خدا نے ہمارے باڈی کا جو ایک سٹرکچر بنایا ہے نا، وہ اپنی شبیہ پر بنایا ہے، یعنی کہ ہم خدا کی شبیہ پر ہیں۔ خدا کے بھی ایسے ہی باڈی ہے، سٹرکچر ہے جیسا ہمارا ہے۔ آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے ہم سبوں کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اور جتنے پارٹ آف باڈی ہمارے ایسے ہی خدا کے بھی ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے، ہمارے جسم کے اندر ایک ایسا اہم حصہ ہے جس کے بغیر جو ہے وہ ہم سانس بھی نہیں لے سکتے۔ ہماری باڈی کے اندر دل جو ہے وہ ہمارے جسم کا ایک ایسا حصہ ہے، جب تک وہ دھڑکتا رہتا ہے ہمارے جسم کے اندر جان ہے، اور جب وہ دھڑکنا بند ہو جاتا ہے تو ہم کیا ہیں، ڈیڈ ہیں، ہم کیا ہیں، مردہ ہیں۔ تو آج ہم دل کے بارے میں جو ہے نا وہ کلام مقدس کے اندر سے سیکھیں گے، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ رات کو کیا کلام ہوا، مسا نے کیا بیان کرنا ہے، یا پاسٹر صاحب نے یہاں پر کیا باتیں شیئر کرنی ہے، لیکن وہی ہے کنیکشن۔ ہمارا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ روح میں کنیکشن ہے، اور ہماری ضرورت کے مطابق خدا ہمیں کلام دیتا ہے جو ہماری ضرورت ہے۔ اور آج ہم کلام کے اوپر فل فوکس رکھیں گے، اور اس میں جو ہے نا وہ میں کوشش کروں گی کہ کوئی بھی ادھر ادھر کی بات جو ہے نا وہ نہ آئے، ہمارا دھیان جو ہے وہ بالکل کلام کے اوپر ہو، ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے ہم۔ آمین۔ تو ہم کلام مقدس کو کھولیں گے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی بہترین بات ہے کہ ہم عزت کی روح سے اپنے سے دوسروں کو بہتر سمجھیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، اپنی خودی کا انکار کرنا، اپنی میں کو مارنا۔ جب ہم اپنی خودی کا انکار کرتے ہیں، جب اپنی میں کو مارتے ہیں، تب ہمارے اندر کیا آ جاتی ہے، عاجزی، انکساری، اور یہ باتیں جو ہیں وہ ہمارے خدا کو پسند ہیں۔ آمین۔ اور وہ یہ باتیں ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ جب اس نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا تو وہ چاہتا ہے کہ ہم اندر سے بھی اس کی مانند ہی ہوں۔ اگر ہم باہر سے اس کی مانند نظر آتے ہیں تو اندر سے بھی ہم اسی کی مانند ہوں۔ تو امثال کی کتاب نکالیں گے۔ آج حکمت جو ہے وہ خدا ہم پر جو ہے وہ کثرت سے انڈیل رہا ہے، ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ امثال کی کتاب
21 बाब और उसकी दूसरी आयत। बच्चे जब यहाँ पर आकर कलाम को बयान करते हैं तो यकीनन मुझे तो बहुत बरकत मिलती है और आप सबको भी बरकत मिलती है, क्योंकि उनके अंदर जो है वो हम लोगों से, उनकी उम्र बेशक कम ही है, लेकिन वो ऐसी ऐसी बात कर जाते हैं जो कि हमने पहले सुनी भी नहीं होती या वो हमारे ज़हन के अंदर भी नहीं आती। खुदा उनके ऊपर ऐसी हिकमत खोलता है। तो जब यहाँ पर आकर बच्चे जो है वो मज़हब पर खड़े होकर कलाम को बयान करते हैं तो यकीनन हमें बहुत बरकत मिलती है और ये उनकी तरक्की का बाइस है। अगर वो आज इन बातों को सीख रहे हैं जो हमने 40 साल की उम्र में सीखी हैं, तो देखें जब वो 40 साल की उम्र के अंदर जाएंगे तो वो कैसे सुरमा होंगे, उनके अंदर खुदा की कैसी हिकमत होगी। तो इसके लिए खुदावंद का बहुत शुक्र अदा करती हूँ और मेरी दुआ है कि सभी बच्चे जो है वो यहाँ पर मज़बा पर खड़े होकर खुदा का कलाम जो है वो बयान करें और खुदावंद जो है वो उनको अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे। तो इंसान 21 बाब और उसकी दूसरी आयत को पढ़ेंगे। इंसान की हर एक रविश उसकी नज़र में रास्त है, पर खुदा दिलों को जांचता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा क्या करता है? हमारे दिलों को जांचता है। हम अपनी नज़र में तो दानिशमंद हैं, अपनी नज़र में तो हम रास्तबाज हैं, अपनी नज़र में तो हम पाक हैं, अपनी नज़र में तो हम जो हैं वो खुदा के साथ ही चल रहे हैं। हम समझते हैं कि हम जो है वो बाइबल स्टडी के अंदर जा रहे हैं, हम चर्च के अंदर जा रहे हैं, हम बड़ी हिकमत की बातों को सीख रहे हैं और यकीनन सीख भी रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो कलाम खुदावंद हमारी ज़िंदगियों के ऊपर खोलता है वो बहुत कम चर्चेस के अंदर जो है ना वो खोला जाता है, क्योंकि हमने बहुत से चर्चों को जो है ना वो विज़िट किया हुआ है, बहुत से खादमों के साथ मिले हैं, बहुत से चर्चेस में जाते रहे हैं, लेकिन ऐसी हिकमत की बातें जो खुदा हमारे ऊपर यहाँ पर खोलता है ना बहुत कम लोगों के ऊपर खोलता है। आमीन। तो अगर हम अपनी नज़र में कहें कि इंसान जो है वो कहे कि अपनी नज़र में कि मैं रास्त हूँ, पर खुदा की निगाह किस चीज़ पर है? खुदा की निगाह हमारे दिल पर है। दिल एक ऐसी हमारा बॉडी का पार्ट है कि इसको कोई भी शख्स जो है वो दरियाफ्त नहीं कर सकता। हमारे दिल को, हमारे दिल के अंदर क्या चल रहा है, कोई दूसरा इसको नहीं जान सकता। या तो खुदा जानता है या फिर हम खुद जानते हैं। इसीलिए खुदा की नज़र कहाँ पर है? हमारे दिल पर है। हम अपनी नज़र में रास्तबाज बनते हैं, हम अपनी नज़र में दानिशमंद हैं, हम अपनी नज़र में खुदा के साथ चल रहे हैं, लेकिन खुदा की निगाह कहाँ पर है? खुदा की निगाह हमारे दिल पर है। तो आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि खुदा जो है वो कैसा दिल जो है वो हमारे लिए चाहता है और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि खुदा को पसंद नहीं है कि वो हमारे दिल के अंदर भी आए। अगर वो हमारे दिल के अंदर हैं तो हम खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं हैं, लेकिन वो हमें कैसा दिल देना चाहता है? वो चाहता है कि हमारा दिल जो है वो किस तरह का हो, खुदा की मानद हो या किसी इंसान की मानद। अगर हम खुदा की शबीह पर हैं तो हमारा दिल भी किसकी मानद होना चाहिए? खुदा की मानद। तो अगर हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर दुनियादारी की चीज़ों को रखा हुआ है तो फिर अगर हम दुनियादार हैं तो हमारा दिल किस तरह का होगा? दुनिया की तरह का। और दुनियादारी का दिल जो है वो खुदा को पसंद नहीं है। खुदा हमें कौन सा दिल देना चाहता है? जिस तरह का हमारे खुदा का दिल है। कलाम के अंदर लिखा है कि दिल जो है ना वो ला इलाज और हिलाबाज है, इसको कोई दरियाफ्त नहीं कर सकता, इसको कोई भी जान नहीं सकता, लेकिन इंसान इसको खुद जान सकता है और खुदा भी इसको जानता है कि हमारे दिल के अंदर जो है वो क्या चल रहा है, हमारे दिल के अंदर कैसी बातें हैं, हम क्या खुदा के कलाम के मुताबिक हैं। हमारे दिल को जो है कलाम के अंदर लिखा है यूब नबी की किताब में 35 बाब उसकी 36 आयत में कि दिल को दानिश जो है वो किसने बख्शी है। अगर हम अपनी नज़र में दानिशमंद बनते हैं, अगर हम कहते हैं कि हमारी राहें जो हैं वो रास्त हैं, हमारी जो रविशें हैं वो रास्त हैं, तो हमारे दिल को दानिश जो है वो किसने बख्शी है? यकीनन खुदा ने। हमारे दिल को दानिश खुदा ने बख्शी है। तो खुदा जो है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारे दिल को नरम और सख्त करना जानता है। बादशाहों के दिल जो है वो किसकी मुट्ठी के अंदर है? खुदा की। खुदावंद खुदा की मुट्ठी के अंदर है और वो जिस तरफ चाहता है उनको मोड़ देता है। फिरौन के दिल को कौन सख्त करता था? खुदा। और दूसरी लम्हे उसको नरम भी कर देता था। तो जब बादशाह का दिल जो है वो खुदा की मुट्ठी के अंदर है, तो हम जो आम इंसान हैं हमारा दिल किसकी मुट्ठी के अंदर है? खुदा की मुट्ठी के अंदर है। लेकिन कभी कभी हम इसको अपने कंट्रोल के अंदर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम इसको ऐसे इस्तेमाल करें जैसे हम चाहते हैं।
اور اس خیال کو اپنے دل کے اندر لے کر آتے ہیں کہ ہماری جو روشیں ہیں نا وہ راست ہیں، ہم تو خدا کی مانند چل رہے ہیں، ہم تو خدا کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں، جب یہ بات ہمارے دل کے اندر آتی ہے تو یہ جو ہے یہ خدا کو پسند نہیں ہے، کیونکہ خدا کی نگاہ جو ہے وہ ہمارے دل پر ہے اور خدا جانتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے۔ آمین آمین۔ آج جو ہم کلام کے اندر سے دیکھیں گے کہ کون سے دل ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہیں، اور اس کو جو ہے نا ہم کلام کے اندر سے ہی جو ہے نا اس پہ کلام کی آیتوں میں سے اس پر دھیان کریں، کیونکہ بردر کیون کی میٹنگ میں نا ہم نے سیکھا ہے کہ ہم کلام کے اندر سے جو ہے نا وہ کلام کی آیتوں کو لے کر، تاکہ کلام جو ہے وہ سخت بھی ہے اور نرم بھی ہے، اور کبھی کبھی جو ہے نا وہ ہم فیل کرتے ہیں کہ شاید یہ کلام جو ہے وہ ہمارے لیے اسپیشلی بولا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے، لیکن نہیں، یہ خدا کے کلام کی باتیں ہیں، اور یہ کلام کی جو بات ہے جب ہم کلام کے اندر سے کریں گے اور آیتوں کے حوالے دے کر کریں گے تو پھر ہماری زندگی کے اندر ان چیزوں کی تبدیلی بھی آئے گی، اور ہم سیکھیں گے کہ واقعی یہ بات تو خدا نے لکھی ہے، کسی انسان نے نہیں لکھی ہے یہ بات، ٹھیک ہے۔ خدا کو جو ہے وہ کون کون سے دل جو ہے وہ پسند نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو خدا کو شرارتی دل پسند نہیں ہے۔ کون سا دل پسند نہیں ہے؟ شرارتی دل۔ اور شرارت کا جو ہے وہ کلام کے اندر بہت سی جگہوں پر، خاص طور پہ زبور کی کتاب میں اور امثال کی کتاب میں اس کا بہت ذکر کیا گیا ہے کہ شرارتی دل جو ہے وہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ اس کو نکالیں گے ہم زبور 58 اور اس کی دوسری آیت۔ زبور 58 اور اس کی دوسری آیت۔ بلکہ تم تو دل ہی دل میں شرارت کرتے ہو اور زمین پر اپنے ہاتھوں سے ظلم پیمائی کرتے ہو۔ تم دل ہی دل میں کیا کرتے ہو؟ شرارت کرتے ہو۔ شرارت کہاں سے آتی ہے؟ شرارت دل سے آتی ہے، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ ظلم یہ نہیں ہوتا کہ ہم ہاتھوں سے کسی کو ماریں یا ڈنڈے کے ساتھ کسی کا سر پھاڑ دیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے لفظوں سے، اپنی باتوں سے کیا کرتے ہیں؟ ظلم پیمائی کرتے ہیں، اور یہ شرارت کہاں سے ہمارے آتی ہے؟ ہمارے دل کے اندر سے آتی ہے، اور شرارتی دل جو ہے وہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ ہمارا فوکس جو ہے وہ ان پوائنٹس پہ رہے گا کہ خدا کو جو ہے وہ کون کون سے دل جو ہے وہ پسند نہیں ہے، اور آیتوں کو آپ نوٹ کرتے رہیں، کیونکہ ہمارا جو کلام ہے نا یہ اتنا سادہ لکھا گیا کہ اس کو سمجھنے میں ہمیں کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم جان بوجھ کے اس کو نہ سمجھنا چاہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ صاف صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے، اگر اس کی تشریح نہ بھی کی جائے تو بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ آمین۔ شرارتی دل جو ہے وہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ اور دوسرا مغرور دل، زبور 101 اور اس کی 5 آیت۔ زبور 101 اور اس کی 5 آیت۔ اس کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ میں بلند نظر اور مغرور دل کی برداشت نہ کروں گا۔ میں بلند نظر اور مغرور دل کی برداشت نہ کروں گا۔ خدا کو بلند نظر اور مغرور دل جو ہے وہ اس کی برداشت نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بات جو ہے وہ ہماری برداشت سے باہر ہے۔ انسان ہوتے ہوئے ہم کچھ چیزوں کی برداشت نہیں کرتے، لیکن خدا بھی کہتا ہے کہ مجھے بلند نظر اور مغرور دل جو ہے وہ برداشت نہیں ہے۔ خدا ان کو برداشت نہیں کرتا۔ آگے ہم دیکھیں گے برے منصوبے باندھنے والا دل، امثال 6 باب اور اس کی 18 آیت۔ برے منصوبے باندھنے والا دل، امثال 6 باب اور اس کی 18 آیت۔ اگر کوئی نکال دیتا تو وہ پڑھ دے جلدی سے۔ امثال برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، 18 آیت۔ امثال 6 باب اور اس کی 18 آیت۔ 18 آیت۔ برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں۔
बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल जो है वो खुदा को पसंद नहीं है, और तेज रो पाँव जो जल्दी से बदी की तरफ जो है वो मुड़ जाते हैं। बगैर सोचे समझे हम बदी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। जो काम हम करना नहीं चाहते उसकी तरफ हम मुड़ जाते हैं। खुदा को बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल जो है वो पसंद नहीं है, और मंसूबे जो है वो हमारे दिल के अंदर आते हैं और हमारे पाँव जो है वो क्या करते हैं, उस राह पर चलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमने अपने दिल के अंदर बुरे मंसूबों को आने नहीं देना, ताकि हमारे पाँव जो है वो बदी की तरफ ना जाए। आमीन। डरपोक और कच्चा दिल, ये ना आगे जो 2 पॉइंट आएंगे ना ये थोड़े सख्त हैं, लेकिन हम कलाम के अंदर से सीख रहे हैं, इसलिए ये हमारी बेहतरी के लिए हम इसको सीखेंगे। ये कलाम जो है वो हम सबों के लिए ही है। खुदा जो है वो हमें सिखाना चाहता है, लायक तौर से अपने लायक बनाना चाहता है, कि हम लायक तौर से उसके लायक बन जाएं, जैसे वो हमें चाहता है ना हम वैसे बने। इसीलिए खुदा जो है वो हमारे लिए सख्त कलाम ही लेकर आता है। तकरीबन हम सभी जो है ना वो सख्त कलाम की बर्दाश्त करने वाले हैं। इसके लिए भी मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि हम लोग जो है ना वो सख्त कलाम को बर्दाश्त करते हैं। यकीनन इस वजह से बर्दाश्त करते हैं क्योंकि हम सीखना चाहते हैं, हम खुदा में आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो बंदा सीखने वाला नहीं ना होगा वो भाग जाएगा। वो जो पास्टर साहब की बात है वो टिकेगा ही नहीं। वो कहेगा कि यीशु मसीह के साथ भी जितने शागिर्द थे ना सब भी उसके साथ नहीं रहे। उन्होंने कहा कि ये तो कलाम बढ़ा सकता है, इस पर कौन अमल कर सकता है, तो क्या हुए, यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। लेकिन जिन्होंने अब्दियत को हासिल करना था, जिन्होंने हमेशा की जिंदगी लेनी थी, वो उसके साथ ही रहे, सख्त कलाम की भी बर्दाश्त करते रहे। यीशु मसीह उनको डांटते भी रहे। तूफान जब आया यीशु मसीह ने शागिर्दों को क्या किया, डांटा, लेकिन वो उसको छोड़कर नहीं गए। उनको पता था कि ये हमारी बेहतरी के लिए है, उस्ताद हमें क्या कर रहा है, सिखा रहा है। इसीलिए खुदा भी हमें सिखाना चाहता है, इसीलिए सख्त कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर आते हैं ताकि हम सीख जाएं। और तकरीबन यहाँ पर हम जितने बैठे हैं ना तकरीबन सभी सीखने वाले हैं और कलाम को जो है वो बर्दाश्त करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये कलाम हमारी बेहतरी के लिए है, हमारे घरानों की बेहतरी के लिए, हमारी जिंदगी की, आने वाली जिंदगी की बेहतरी के लिए, ताकि हम अब्दियत को हासिल करें। अब हम बच्चे नहीं हैं कि हमें दूध पिलाया जाए। अब पलूस रसूल कहता है कि अब हम बच्चे नहीं हैं, खुदा की बादशाही नजदीक आ रही है, उसका जल्द आना है। और कभी भी हमें भी क्या पता कि आज रात को यीशु मसीह आ जाए। और अगर ये कलाम हमने ना सीखा हो, हमारे अंदर ना बर्दाश्त हो, तो फिर हम क्या करेंगे, यहीं पर रह जाएंगे। और अगर हमने सब कुछ सीखा होगा तो क्या होगा, हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। आमीन। तो अब निकालेंगे डरपोक और कच्चा दिल, अस्तिशना 20 बाब और उसकी 8 आयत। अस्तिशना 20 बाब और उसकी 8 आयत। अस्तिशना 20 बाब और उसकी 8 आयत। ये जंग की बात होने लगी है जो भी बेटी मस्सा ने की है, कि जब किसी को यहाँ पर खड़ा करने के लिए कहा जाता है या उसने यहाँ पर खड़ा होना होता है तो उसने एक जंग लड़ के यहाँ पर आना होता है और जंग को जीत कर यहाँ पे पहुंचना पड़ता है। आमीन। आम लोगों के लिए तो ये होता है कि फलां बंदे ने कलाम सुनाना है या यहाँ पर किसी ने आके होली कम्युनियन करनी है या मीटिंग प्रिसाइड करनी है, लेकिन उसके पीछे जो पूरा हफ्ता उसके साथ चल रहा होता है ना वो किसी को नहीं पता होता। उस जंग को जीत कर उसने यहाँ पर आना होता है और फिर यहाँ पर आकर खुदा के कलाम की बात को करना है और दूसरों की जिंदगी को क्या करना है, बचाना है। क्योंकि यहाँ पर बोले जाने वाले जो अल्फाज है ना वो यहाँ पर किसी ना किसी की जिंदगी को जरूर बचाएंगे, क्योंकि खुदा का कलाम कभी भी बेतासीर नहीं लौटता, वो हमेशा दिलों पर असर करता है। आमीन। और यहाँ पर भी जंग की बात छिड़ने लगी है। इस बात और फौजी हुकाम लोगों की तरफ मुखातिब होकर उनसे ये भी कहें कि जो शख्स, ये खुदा की तरफ से आ रही है, ये बात जो है वो उनको खुदा की तरफ से कही जा रही है। और फौजी हुकाम लोगों की तरफ मुखातिब होकर उनसे ये भी कहें कि जो शख्स डरपोक और कच्चे दिल का हो वो भी अपने घर को लौट जाए। वो क्या करे, जो कच्चे दिल का हो वो अपने घर को लौट जाए, वो जंग के अंदर ना जाए, उसको जंग में शामिल ना किया जाए। जिसका दिल कच्चा है और जो डरपोक है, एक गोली चलनी है तो उन्हें डर के थल्ले बैठ उसको जो है ना वो अभी से घर वापिस भेज दो, उसको जंग पे साथ ना लेकर जाओ। ये हुक्म कौन कर रहा है, ये खुदा दे रहा है कि कच्चे दिल और डरपोक को जंग के अंदर शामिल नहीं करना। उसको अभी से यहीं पे बता दो कि आगे जंग होनी है,
बड़ा सख्त मुकाबला है, जे लड़ सकना है तो ठीक है, जे नहीं तो कार वापस चला जा। आमीन। खुदा को देखिए, खुदा जो है ना वो उसने हमें आजाद मर्जी दी है। खुदा हम पे जबरदस्ती नहीं करता, खुदा ने हम पे कोई जबरदस्ती नहीं की है। खुदा ने हमें आजाद मर्जी दी है। खिदमत करनी है तो कर लो, नहीं करनी तो आराम लगाइयो। आजाद मर्जी दी है। खुदा ने हमारे ऊपर कोई भी चीज जो है ना वो थोपी नहीं है। अगर इस तरह होता तो बाग़ अदन के अंदर गुनाह ना होता। अगर खुदा ने अपनी मर्जी वहां पे करनी होती तो वहां पे गुनाह ना होता, वहीं पे खुदा हवा को रोक लेता। लेकिन खुदा ने उसको उसकी मर्जी करने दी। खुदा ने देखा कि हवा क्या फैसला करती है। हवा जो है वो जिंदगी को चुनती है या मौत को चुनती है, लेकिन हवा ने क्या किया, उसने मौत को चुन लिया। उसने अपनी जिंदगी के अंदर गलत फैसला कर लिया। खुदा इसी तरह से हमारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता। खुदा हमें फैसले करने का खुदा ने हमें हक दिया है। आमीन। तो इसके अंदर लिखा है कि जो कच्चे दिल को डर पोक हो वो अपने घर को लौट जाए। और आगे लिखा है कि उसकी तरह उसके भाइयों का हौसला भी टूट ना जाए, यानी कि वो दूसरों के लिए भी ठोकर का बाइस ना बने। ये बड़ी सख्त बात है ये, कि हम जो है वो दूसरों के लिए क्या करते हैं, हम ईमानदार होकर दूसरों के लिए ठोकर का बाइस बनते हैं। अगर खिदमत ईमानदारी के साथ नहीं कर सकते तो खुदा से कहें कि खुदा मैं नहीं कर सकता। ये कच्चा दिल और जो डरपोक दिल है ना, कि अगर कितने शैतान आ गया उन्हें किसी पासे ला लिया तो फटाफट उन्हें मगर लग गए। क्योंकि वो तो हमारे दिलों के अंदर ख्याल लेके आता ही है, लेके आने भी है। उसका काम क्या है, उसको किसी लिए छोड़ा गया है, उसने तो करना है अपना काम। हम आगे से क्या करते हैं? क्या हमारा दिल जो है वो खुदा के अंदर मजबूत है? क्या हम पक्के दिल के हैं? अगर उसकी कोई बात हम सुनेंगे, हमारे कानों में आकर कहेगा तो हम कहेंगे कि आप प्लीज दूर हो। पतरस जो था वो खुदा का, शमौन जो था वो खुदा का शागिर्द था। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, क्योंकि खुदा को उस वक्त पता था कि ये शमौन नहीं बात कर रहा, इसके अंदर अबलीस बात कर रहा है। तो खुदा ने कहा कि ए शैतान दूर हो। क्या हम अपनी जिंदगी के अंदर, जब शैतान हमारी जिंदगी के अंदर बातों को लेकर आता है, तो क्या हम उसको डांटते हैं? क्या हम उसको कहते हैं? क्या हम उसको कहते हैं कि ए शैतान हमारी जिंदगी से दूर हो, मैं सुन रही हूँ या मैं सुन रहा हूँ कि ये बात तो तेरी तरफ से है, ये मेरे खुदा की तरफ से नहीं है, ये तू मेरे साथ बोल रहा है और मुझे गलत काम पर उकसा रहा है, मुझे गलत करने पर उकसा रहा है, तो मेरी जिंदगी से दूर हो। ऐसे को खुदा ने क्या कहा कि ऐसे लोगों को जंग के अंदर शामिल ना करो। आज हम जो है ईमानदार है, किसके अंदर है? एक फौज है हम खुदा की, और हम क्या है, खुदा की जंग को लड़ रहे हैं। फतह तो खुदा ने देनी है, लेकिन उससे पहले खुदा हमारे दिल को चेक करता है। पक्का है, डर पोक तो नहीं है कि अगर इसके ऊपर कोई आजमाइश आएगी, कोई मुश्किल आएगी तो डर कर अबलीस के पीछे तो नहीं चला जाएगा। अबलीस जो हमें जिंदगी देता है ना, वो बड़ी लुत्फानंदोज जिंदगी है। उसके अंदर बड़ा सुकून है, बड़ा लुत्फ है दुनियादारी के अंदर रहते हुए। लेकिन इंतहा में क्या है? इंतहा में तो मौत की राहें ही हैं, इंतहा में तो मौत है। लेकिन वो जिंदगी के अंदर हमें इस तरह की जो है ना वो चीजें देता है, इस तरह की वो हमें जो है वो खुशियां भी देता है, वो दौलत भी देता है, इस तरह की वो चीजें देता है कि हमारा दिल जो है वो उस पर लग जाता है। क्योंकि हमारा दिल क्या है? कच्चा है, हम खुदा में मजबूत नहीं है। तो इस तरह के दिल को पहले खुदा कहता है कि अगर दिल कच्चा है तो इसको क्या कर, घर की तरफ इसको कह के लौट जा, जंग में ना जा। आमीन। आगे देखेंगे, उलफती लब और बाखवा दिल, इंसाल 26 बाब और उसकी 23 आयत। इंसाल 26 बाब और उसकी 23 आयत। जितना हम खुदा का कलाम सुनते हैं ना, जितनी हम बाइबल स्टडी जितनी हम ले रहे हैं, जितनी खालिस बातों को हम सीख रहे हैं, हमें अबलीस की बातों का ना फौरन पता चल जाना चाहिए। हमें उसकी आवाज़ का फौरन पता चल जाना चाहिए कि ये आवाज़ जो है वो अबलीस की है या खुदा की है, और हमें जो है उसका मुकाबला करना चाहिए। उसको उसी वक्त डांट देना चाहिए, उसको कहना चाहिए कि अबलीस दूर हो, तू क्या कर रहा है, मेरी राहों को बिगाड़ रहा है, मुझे खुदा से हटा रहा है। उसको डांटेंगे तो वो दूर हो जाएगा। उसकी इतनी पावर नहीं है हमारे यीशु के सामने के वो दूर ना होकर नहीं मैं तो नहीं होना दूर। उसी वक्त अगर फुल पावर के साथ उसको डांटेंगे ना, उसी वक्त दूर हो जाएगा, टिकने नहीं पाएगा आपकी जिंदगी के अंदर।
انسان 26 باپ اور اس کی 23 آیت دیکھیں گے. الفتی لب بدخواہ دل کے ساتھ اس ٹھیکرے کی مانند ہے جس پر کھوٹی چاندی منڈی ہے. آمین. کھوٹی چاندی کیا ہوتی ہے؟ جو نکلی ہوتی ہے. ہم اکثر چاندی اور سونے کو جو ہے نا وہ اس کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے. ہم جب اس کو کسی کپڑے کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر رگڑتے ہیں تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چاندی جو ہے وہ صحیح ہے, یہ سونا جو ہے وہ ٹھیک ہے, یا یہ نکلی ہے, یا یہ اصلی ہے. تو خدا کیا کہتا ہے کہ الفتی لب, جو اوپر سے تو آپ کو محبت دکھائیں, جو لبوں سے تو آپ کو محبت دکھائیں, لیکن دل کے اندر کیا ہو؟ کھوٹ ہو, بدخواہ دل. اور اس کے اندر کیا ہے؟ وہ اس ٹھیکڑے کی مانند ہے جس پر, اس کھوٹی چاندی کی مانند ہے جو ٹھیکڑے پر منڈی جاتی ہے. الفتی لب جو ہیں وہ محبت دکھاتے ہیں اوپر اوپر سے, زبان سے, لیکن بدخواہ دل جو ہے اس کے اندر کیا ہے؟ کھوٹ ہے. کھوٹ خدا کو پسند نہیں ہے. خدا چاہتا ہے کہ جیسے آپ کی الفت جو ہے, جو آپ کی محبت ہے, جیسی منہ کے اوپر ہے ویسی ہی آپ کے دل کے اندر بھی ہونی چاہیے. الفتی لب جو ہے صرف الفت لبوں سے نہ ہو, محبت جو ہے وہ صرف لفظوں سے نہ ہو بلکہ دل سے ہو. صرف منہ سے ہم نے خدا کی تعریف اور تمجید نہیں کرنی, بلکہ دل سے اس کی پوری طور پر اس کی کیا کرنی ہے؟ شکر گزاری کرنی ہے. پورے دل سے اپنے خداوند کو جو ہے وہ پہچاننا ہے, پورے دل سے اس کے ساتھ جو ہے وہ چلنا ہے. آمین. تو یہ کتنے دل ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہیں, اور بھی بہت سارے دل ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہیں, لیکن جتنی خدا نے مجھے حکمت دی اور میں نے ان کو جو ہے وہ اپنے قلم بند کیا, وہ یہ ہیں: شرارتی دل, مغرور دل, برے منصوبے باندھنے والا دل, ڈر پوک اور کچا دل, الفتی لب اور بدخواہ دل. یہ خدا کو پسند نہیں ہے. اسی لیے اس دل کو ہم نے اپنے اندر سے کیا کرنا ہے؟ نکالنا ہے. اور جو دل خدا کو پسند ہے وہ ہم نے خدا کے لیے کیا کرنا ہے؟ تیار کرنا ہے. خدا کو کون کون سا دل جو ہے وہ پسند ہے؟ پاک دل. وہ پاک ہے اور وہ اپنے لوگوں کو بھی کیا دیتا ہے؟ پاک دل دیتا ہے. خدا کو کون سا دل پسند ہے؟ پاک دل. زبور 51 اس کی 10 ورس. زبور 51 اور اس کی 10 ورس. اے خداوند میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثرنو مستقیم روح ڈال. میرے باطن میں کون سی روح ڈال؟ اثرنو مستقیم روح. مستقیم کا مطلب ہے مضبوط, مضبوط روح میرے اندر ڈال. وہی بات کہ ڈر پاک دل جو ہے وہ خدا کو پسند نہیں ہے. کیا کہتا ہے کہ اے خدا میرے اندر پاک دل ڈال. حالانکہ داؤد جو تھا وہ خدا کے دل کے موافق تھا. خدا نے کہا کہ میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا ہے میرے دل کے موافق, یعنی کہ خدا کا بھی دل ہے, خدا کا بھی دل ہے. اسی لیے اس نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا اور ہمارے اندر بھی ایک دل رکھا. اور وہ کہتا ہے کہ خدا میرے اندر پاک دل ڈال. حالانکہ وہ تو خدا کے دل کے موافق تھا داؤد, تو بھی وہ خدا سے کیا دعا کر رہا ہے کہ میرے اندر پاک دل ڈال. وہ اس بات کو فیل کرتا ہے کہ شاید میرے اندر دل جو میرا دل ہے وہ پاک نہیں ہے, اور میرے اندر اثرنو مستقیم روح ڈال, ایسی مضبوط روح ڈال جو کہ مجھے تیرے کلام سے کبھی بھی ہٹنے نہ دے, کبھی بھی مجھے ابلیس سے ڈرنے نہ دے. آمین. اور دوسرا جو ہے وہ ہے خستہ دل. خدا کو کون سا دل پسند ہے؟ خستہ دل. زبور 51 اور اس کی 17 آیت. اسی زبور کی زبور 51 اور اس کی 17 آیت. اور اس کا یہ دوسرا پارٹ ہے, فرسٹ سے یہاں 17 آیت سے ہے. شکستہ روح خدا کی قربانی ہے, اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا. آمین. خدا شکستہ اور خستہ دل کو کبھی بھی حقیر نہیں جانتا. جن کے دل شکستہ ہوتے ہیں اور خستہ ہوتے ہیں, خستہ یعنی خالص, جیسے مٹھائیوں کی دکان پہ لکھا ہوتا ہے نا خستہ اور لذیذ مٹھائیاں, ایسے ہی خدا کو جو ہے وہ خستہ دل پسند ہے.
खालिस दिल। और खुदा क्या कहता है कि मैं उसकी दुआ को कभी भी हकीर नहीं जानता। सैमुअल की दुआ को खुदा ने मिट्टी में मिलने नहीं दिया, किसी भी बात को। सैमुअल ने जब भी खुदा से दुआ की, खुदा ने उसकी दुआ को सुना। क्या सदरक मीसक अब्दुन्नजू की दुआ को खुदा ने कभी हकीर जाना? आग की भट्टी में से उनको बचा लिया। दानियल ने खुदा से दुआ की, खुदा ने कभी उसकी दुआ को हकीर जाना? खुदा ने उसको शेरों की मांद में से निकाल लिया। जो भी लोग शिकस्ता और खस्ता होकर उसके सामने दुआ करते हैं, वो उनकी दुआ को कभी भी हकीर नहीं जानता। पौलुस और सिलास ने खुदा से दुआ की, बेड़ियां खुल गई, खुदा ने उनकी दुआ को हकीर नहीं जाना, बल्कि क्या किया? उनकी दुआ को पसंद किया, क्योंकि खुदा को शिकस्ता और खस्ता दिल पसंद है। आमीन। तो अगर हम खुदा के साथ शिकस्ता और खस्ता होकर चलेंगे तो क्या खुदा हमारी दुआओं को कभी रद्द करेगा? नहीं। खुदा हमारी हर एक दुआ को सुन लेगा और उसका जवाब देगा। और यकीनन हम सबों की दुआओं को खुदा सुनता है। यहाँ पर हम कितनी कितनी बड़ी गवाहियाँ सुनते हैं, कितनी कितनी बड़ी जो है वो हम एक दूसरे के साथ जो है वो बातें जो हम शेयर करते हैं कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी के अंदर कैसे कैसे बड़े काम किए। तो वो क्यों खुदा करता है? इसी वजह से करता है कि हमारे दिल जो है वो खुदा के साथ क्या है? शिकस्ता और खस्ता है। और अगर नहीं है तो हमें शिकस्ता और खस्ता उनको करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी कोई भी दुआ जो है वो रुकने ना पाए, सीधी जो है वो आलम बाला पर सुनी जाए। आमीन। इंसान 14 बाब और उसकी 30 आयत निकालेंगे। जब खुदा हमारे अंदर पाक दिल, खस्ता दिल, खुलूस दिल और शिकस्ता दिल को रखता है ना, तो खुदा फिर हमें आगे से क्या देता है? हमारे अंदर खुदा उस दिल के अंदर क्या भर देता है? खुदा हमारे दिल को मुतमईन दिल कर देता है। कैसा मुतमईन दिल? कोई फिक्र, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। हवा आइए, तूफान आइए, महंगाई आइए, जो मर्जी आइए, आटे की शॉर्टेज हो जाए, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मुतमईन दिल है। खुदा हमारे साथ है हर तरह के हालात में, किसी भी तरह के हालात में हमें छोड़ता नहीं है, कभी भी हमसे दस्तबरदार नहीं होता। हर तरह के हालात में हमें क्या करता है? संभाल लेता है। और निगाह किधर करता है? दिल पर। दिल पाक है, खस्ता है, उसके साथ चल रहा है, खुलूस है दिल के अंदर, तो फिर क्या करता है? दिल को मुतमईन कर देता है। आमीन। और ये इंसान 14 बाब और उसकी 30 आयत के अंदर आयत है। मुतमईन दिल जो है जिस्म की जान और हसद जो है वो हड्डियों की वसीदगी है। इसीलिए हमने क्या करना है? अपने अंदर मुतमईन दिल रखना है और हसद को अपनी जिंदगी के अंदर आने नहीं देना, ताकि वो हमारी हड्डियों के लिए वसीदगी ना बने। आजकल जोड़ों का बड़ा ज्यादा मसला है और जिनको हो जाता है ना, फिर आराम नहीं आता। इसीलिए कोशिश करें कि हड्डियों का मसला हो ही ना। उससे पहले जो है ना वो खुदा के कलाम के मुताबिक अपने आप को कर ले, ताकि हमारी जिंदगी के अंदर कोई बीमारी, कोई दुख आने ही ना पाए। इंसान होते हुए आ भी जाती है दुख बीमारी, लेकिन वो हमारी जिंदगी के अंदर ठहरने ना पाए, हमेशा तक ना टिकने पाए। आए और फौरन हम उसको डांटे और वो यीशु के नाम से खत्म हो जाए। आमीन। और उसके बाद खुदा हमें कौन सा दिल देता है? दानिशवर दिल। आज जो है वो दानिश ही जो है ना वो हमारे ऊपर जो है ना वो खुदा कसरत से नाजिल कर रहा है, और हम जो है वो दानिश के बारे में सीख रहे हैं, हिकमत के बारे में हम सीख रहे हैं। तो खुदा हमें कौन सा दिल दे देता है? दानिशवर दिल दे देता है। और ये दानिशवर दिल जो है यकीनन ये सेकंड एडम चर्च की कलीसिया को जो है ना वो मिल गया है। आमीन। इसीलिए खुदा जो है वो अपनी दानिश को, अपनी हिकमत को दे रहा है। और हिकमत वहीं पे आती है, दानिश वहीं पे आती है जहां पर दानिशवर दिल होता है, दानिशवर दिमाग होता है जो उसको सुनना चाहता है, और ऐसा दानिशवर दिल जो उसको कबूल कर लेता है, तभी हिकमत आती है। और पास्टर साहब हमेशा कहते हैं कि जिस तरह के लोग बैठे होंगे कलाम भी उसी तरह करता है। और यकीनन अगर आपको खुदावंद हिकमत दे रहा है तो आपके अंदर क्या है? हिकमत सीखने की जुस्तजू है। आप हिकमत को सीखना चाहते हैं, इसीलिए खुदा आपको हिकमत जो है वो सिखा रहा है। और हिकमत जो है वो हमारी जिंदगी के लिए क्या है? मुतमईन दिल है। और खुदा हमारे अंदर जो है वो दानिशवर दिल को डाल देता है। आमीन। और शादमान दिल जो हर वक्त खुशी ही करते रहते हैं, जो कभी भी दुखी नहीं होते। और शादमान दिल हमारी जिंदगी के अंदर आ जाएगा तो कोई गम, कोई परेशानी, कोई फिक्र हमारी जिंदगी के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि हमारा दिल क्या होगा? शादमान होगा। जब नूह को कश्ती बनाने के लिए खुदा ने कहा तो उसका दिल क्या था? शादमान था। उसको ये फिक्र नहीं थी कि खुदा तो सारी दुनिया को हलाक करने वाला है, हो सकता है मैं कश्ती बना भी लवा तो फिर भी इन्ने दिन अगर बारिश होए तो मेरी कश्ती भी डूब जाए। डूब सकती थी। 40 दिन और पहाड़ों की चोटियों के ऊपर तक पानी चला गया था, तो क्या वो कश्ती नहीं डूब सकती थी? लेकिन उसके अंदर क्या था?
उसके अंदर शादमान दिल था, उसके अंदर खुदा का मुतमईन दिल था, उसको इस बात पर ईमान था कि खुदा ने उसके अंदर क्या रखा है, मुतमईन दिल रखा है। जो खुदा ने कह दिया है वो खुदा उसके लिए करेगा, क्योंकि खुदा अपने लोगों की दुआओं को कभी भी हकीर नहीं जानता। और जो खुदा के साथ पाक दिल, खस्ता दिल, खलूस दिल के साथ और शिकस्ता दिल के साथ चलते हैं, खुदा उनकी दुआओं को सुनता है और उनको हर तरह के तूफान से भी बचा लेता है, आग की तेजी से भी बचा लेता है और हर तरह के हालात में उनके साथ साथ रहता है, कभी भी उनसे दस्तबरदार नहीं होता। आमीन। एंड पे हम एक हासिल कलाम इसका देखेंगे, क्योंकि कलाम जो है वो हमारी ज़िंदगियों के लिए, आज का कलाम जो है वो सख्त भी था और नरम भी है, दोनों तरह से है। लेकिन इमसाल 20 बाब और उसकी 30 आयत को निकालें कि जब सख्त कलाम हमारी ज़िंदगियों के लिए आता है तो वो हमारी क्या करता है। इमसाल 20 बाब और उसकी 30 आयत। कोड़ों के जख्म से बदी दूर होती है और मार खाने से दिल साफ होता है। आमीन। ये कलाम के जो बातें हैं ये हमारे लिए क्या हैं। अगर कोई आम इंसान यहाँ पर आकर बैठेगा ना तो उसको ये कोड़े लगेंगे, उसको ये लगेगा कि ये इतना सख्त कलाम, ये इतनी सख्त बातें। लेकिन हमारे लिए, हम जो यहाँ पर बैठे हैं, जो दानिश को सीखना चाहते हैं, जो खुदा के कलाम को सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये क्या है, दिल को साफ करने के लिए, हमारे दिल को क्या करने के लिए, साफ करने के लिए। और खुदा हमारे दिलों को क्या करता है, साफ करता है, पाक करता है और चाहता है कि हम उसकी मानद बन जाएं, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो पाक है। और हमारे दिलों को नरम कर देता है ताकि हम खुदा के कलाम की समझ को, खुदा की हिकमत की बातों को जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर लें ताकि हम बच जाएं। खुदा हमें क्या करना चाहता है, बचाना चाहता है। इसीलिए खुदा हमारी ज़िंदगी के ऊपर अपने कलाम को खोलता है कि हमने जो है वो ऐसा दिल अपने अंदर से निकालना है जो शरारती है, जो मगरूर है, जो कच्चा है, डरपोक है और जो बार बार जो है वो बदी की तरफ लग जाता है, अबरीस की बातों की तरफ लग जाता है। उस दिल को अपने अंदर से निकाल कर खुदा का दिल जो पाक और खस्ता है, जो हमारी ज़िंदगियों के अंदर अपने इत्मीनान, अपनी दानिश और अपनी मोहब्बत को भर देता है और हमारी ज़िंदगी के अंदर खुशी और शादमानी को भर देता है, उस दिल को अपने अंदर रखना है। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़े बरकत दें। खुदावंद का शुक्र करते हैं खूबसूरत कलाम के लिए, खूबसूरत बातों के लिए, खुदावंद की बंदी के लिए जोरदार तालियां। जितनी बरकत मिली उतनी तालियां मिलेंगी। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि यकीनन हर रोज़, हर संडे जब भी हमारी बाइबल स्टडी होती है, हम नई बात को सीखते हैं, नई चीज़ को सीखते हैं। मुतमिन दिल तो हमने सीख ही लिया हुआ है, लेकिन आज और ज़्यादा गहरे तौर पे ये बात जो है ये दिल में घर कर दी है कि मुतमिन रहना हमने। जब हम खुदा में आ जाते हैं तो यकीनन हम मुतमिन हो जाते हैं। आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और मैं सिस्टर मार्था से दरख्वास्त करती हूँ आए खुदावंद आज के कलाम के लिए, खुदावंद की बंदी के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें और सब मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। कहे खुदा से कि यकीनन खुदावंद आज का कलाम तेरा मेरे लिए, मेरे घराने के लिए है, मेरे बच्चों के लिए है। तो खुदावंद से मांगे, खुदावंद से कहें, खुदावंद का शुक्र अदा करें। थैंक यू लॉर्ड। तेरा शुक्र। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। खुदावंद आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, मसीह में हमारे बुजुर्ग बाप वफादार खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम को जलाल देते हैं। खुदावंद तो जिंदा और सच्चा खुदा है, तो जो भला है और तेरी शफकत जो है वो अब्दी है आसमानी। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम की तमजीद करते हैं। खुदावंद तो शुक्रगुजारी के लायक खुदा है मेरे प्यारे खुदावंद। देख हमारी सारी शुक्रगुजारियां तेरी हजूरी में बाखूर की मानिद आए मेरे प्यारे खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। खुदावंद आए खुदावंद तू कदूस, मेहरबान, जिंदा, अजीम खुदा है मेरे प्यारे खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं जलाली खुदावंद
और आसमानी खुदा आज के कलाम के लिए हम तहे दिल से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं मेरे प्यारे खुदावंद कि आज तूने हमारी जिंदगी के अंदर आए खुदावंद हमें सिखा दिया, हमें बता दिया मेरे प्यारे खुदावंद कि हमारी जिंदगियों के अंदर से आए खुदावंदा उन बातों को निकालने को लिए आए खुदावंदा। देख तूने अपनी बेटी को आए खुदावंदा कसरत के साथ इस्तेमाल किया, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तेरे फजल को चाहते हैं, तेरे रहम को मांग लेते हैं मेरे प्यारे खुदावंद। और आए खुदावंदा तेरी मोहब्बत के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि आए खुदावंदा देख तू हमसे प्यार करता है, तू हमसे मोहब्बत करता है, इसीलिए आए खुदावंद देख बार बार हमें सिखाता है मेरे प्यारे खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे आ जाने के लिए, तेरे सिखाने के लिए मेरे प्यारे खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। देख तो अपनी बंदी को और ज्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल करना और आए खुदावंदा देख दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाना मेरे प्यारे खुदावंद, ताकि तेरी बहुत सी खोई हुई भेड़ें हैं खुदावंदा तेरे पास आने वाली हों मेरे प्यारे खुदावंद। हम तेरे शुक्रगुजारी करते हैं तेरी बेटी के लिए और ज्यादा हिकमत को मांग लेते हैं आसमानी खुदा, तेरे जोर को मांग लेते हैं, तेरी ताकत को चाहते हैं मेरे प्यारे खुदावंद। खुदावंद तू बड़ा ही मेहरबान खुदा है, तू अजीम खुदा है मेरे जलाली खुदावंद। सेकंड एडम चर्च और मिनिस्ट्री के लिए हम तेरी बरकत को चाहते हैं, तेरी ब्लेसिंग को मांग लेते हैं मेरे प्यारे खुदावंद। देख आसमान के दरीचों को खोल के बरकत दे मेरे प्यारे खुदावंद। खुदावंद देख आए खुदावंद देख तेरे खादम और तेरी खादमा के लिए भी हम तेरी बरकत को चाहते हैं, दिन दुगनी रात चुगनी बरकत दे मेरे प्यारे खुदावंद, तरक्की और सरफराजी दे मेरे आसमानी खुदा। आज की सारी बातों के लिए हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है मेरे प्यारे खुदावंद। जितनी देर हम तेरी हजूरी में थे खुदावंद तू हमारे साथ था मेरे जलाली खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आसमानी खुदा। बाकी मादा वक्त में भी तू हमारे साथ रहना, बड़ी मदद करना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। अभी एक दो गवाहियां लेंगे, उससे पहले एक गीत गाएंगे, लेकिन अभी हदिया नजराना का गीत नहीं, अभी हम वैसे ये गीत गा के उसके बाद एक दो गवाहियां ले। कोई गवाही देना चाहता है? अभी हाथ खड़ा करेगा किसी के पास। अच्छा, तो उससे पहले हम एक गीत गा लेते हैं तालियों के साथ। जरा फ्रेश हो, सुस्ती नजर आ रही मुझे, सारे सब सुस्त हुए हैं, जरा फ्रेश होना है थोड़ा सा। मास्टर से जरा फ्रेश हो, फ्रेश तालियां मारे, तालियां। रेजा रेजा, अच्छा वो भी आते हैं। हम गाएंगे बने रहो तुम यीशु में आ रही सी ना नींद, सही दसना, झूठ नहीं बोलना, यीशु दे कोल आ थोड़ी थोड़ी आ रही सी नींद, हाँ दूर करना है तालियों के साथ। बने रहो तुम यीशु में बने रहो, ये तालियां बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रो में आओ, रो में रो, रो
राहत जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा रोज का तारा तुमको बुलाता है। राहत जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा रोज का तारा तुमको बुलाता है। मनसुबे आनंद पानी हो, मनसुबे आनंद पानी हो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया। कलाम क्या कहता है? तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो वो तुम्हें मिल जाएगा। पर उससे पहले क्या होगा? बनना पड़ेगा यीशु। आमीन। तो एक गवाही लेंगे। कौन गवाही देना चाहता है? आंटी। अम्मी। अच्छा, मेरी मदर ने कहा रेजा रेजा गाना वो अगले इतवार गाएंगे, आपको बताया आज हमने कहीं जाना है, तो मदर इन लॉ की गवाही ले लेते हैं। हालेलुया। जोरदार तालियों में वेलकम करते हैं। गवाही देना, गवाही देना। आज के पैगाम से मैंने एक चीज सीखी है, इससे पहले कि हालेलुया। दुआई सुनीजिए। माँ जी अगले संडे करेंगे, टाइम हमारे पास काम ਤੁਸੀਂ हर 12:30। वारी जाना ਹੁੰਦਾ मैं तो ਅੱਜ करनी अच्छा चले चले बस एक दो जो है ना मेरी कोई गुजारिश ये मैं कल गई ना तो बाबा तो दही लग गए तो मेरे ना कलाम के बारे ना कुछ बातें करने लगा तो मैं क्या मैं जो सुनाइया ना तो तू फिर ना सानू झूठा कर देते ते आप तो सच्चे हो गए मुसलमान सी ना तो मैं बाबा जी रह नहीं दियो इतने मैं तुसी सच्चे बन जाने तो मैं कलाम तो बहुत ना एक बस वर्ष अनुसार तो मैं कर रहा मैं मेरे बच्चे मना करते कि बाहर अम्मी कोई कलाम की ऐसी गल ना करे फिर सच्चे हो जाते ते मैं मेरी इन्नी कपल हैगी तो मैं तू इत्थे ही रहंदी बाबा जी जिथे भी हैगी ते मैं तू गल नहीं तो मैं घर जाना ते लोग ना फिर बहस करके ना सानू झूठिया कर देंदे ने ते असी साडे खुदा ने सानू कहा है कि गैर कौमों की तरह बक बक ना कर साडा खुदा सानू समझांदा ते सानू इन्नी अकल मैं आ गई तो तू बाबा जी मैं नहीं दे ਇਹ ਬਾतें मैं नहीं बाहर कर सकती ते मेरे बच्चों ने मैंने मना किया तो कलाम का मैं बड़ा है तो तुसी अपना जे दसी मसीह ये होगा सी तो पंज दे नाल बंदे सी ते इन्नी गल जो करन लगा ना तो एक सोने की ढेली सी ते खुदा चुकन लगा सी मसीह मैं तू बह आराम नाल चुकन लगा स्वाब बादशाह का बादशाह दिल च गया वो लोगों को देख छड़दा मौत जिंदगी का भी उन्होंने सी खुदा को सारे काम सी ते तू मैं कौन पर मैं ना की नहीं बहस मैं इतने ना गल लम्मी पा के तेने मैंने झूठिया कर देना ये लोग इस तरह के ने तो असं इन्हें ना करिए ही ना माँ जी टाइम जो- कौन सा गीत कह रहे हैं? गीत कौन सा कह रहे हैं? तमीना चल नहीं इधर बताएं। तो मैं जो भी बहन की बातों से मैंने जो सीखा मैं जल्दी से 1 मिनट में आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब तो ये हुआ अब जो आज का अर्क मैं आपको देने लगा हूँ। अर्क ये है कि दाऊद के अंदर 2 दिल हैं। अब मैं बड़ी आपको गहरी बात बताने लगा हूँ जो बैग तैयार समझ में आ जाएगी जिनको समझ है। ठीक है 2 दिल है 2 दिल रखने के बावजूद वो 2 दिला नहीं। एक दिल वो है जो पुराना आदम पहले आदम का है पर वो खुदा से क्या मांग रहा है नया दिल। ठीक है वो भी आ जाएगा पहले वाला दिल भी है उसके पास और नया भी आ जाएगा। अब 2 दिल आ गए उसके पास पर बाइबल कह रही 2 दिल नहीं बनना पर है 2 दिल होने के बावजूद वो अमल एक पे ही करता है। दिल 2 रखता है पर सुनेगा एक की। जब हम दोनों को सुनने लग जाए ना तो वो 2 दिल हो जाए। ये दिल और माइंड को हम इंग्लिश में माइंड भी कहते हैं। ज़हन और दिल ना एक ही है।
दिल का ख्याल, दिल थोड़ी सोचता है, वो तो ये सोचता है। तो ये ना एक दूसरे से कनेक्ट है। इनको हम दिल भी कह सकते हैं आसान लफ्जों में, और ज़ेन भी कहते हैं। तो एक्चुअली मोहम्मद दो ज़ेन है, जो रात को हम बात कर रहे थे, वो दो ज़ेन है हम, लेकिन सुन्नी एक ही है। वो पाक जो है ना दिल, उसकी सुन्नी, दूसरे की नहीं सुन्नी। हालांकि वो भी हमारे अंदर ही है, वो भी तैयार है अपनी सुनाने के लिए, पर हमने एक ही सुना। हालेलुया। तो बस ये आखिरी गीत गाएंगे और इस उसके गीत बाद के दौरान हम हदिया नजरानी भी हाँ, करेंगे। yes, very good. हालेलुया 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 हालेलुया। पर जी सोइयां ना आंदा हालेलुया हालेलुया। मान जाग रहे हैं, मत सोया करे, उठो और बेदार हो। हालेलुया हालेलुया। मेरे पुत दिया नाजुक कलियां जाना किल दे किल लगाई, सब खड़े हो जाओ, अपने कदमों पे शुभ जारी करें। एक किल में सीने चढ़ दे, मैनू आ जाए पुत दिया, इंज लगदा जिवें ताल बारी, फिरान दी फेर खुदाई, हौली हौली दिल लाए वालिया, हौली हौली दिल लाए वालिया, दिल बिना महराए बिना कौन वालिया, हौली हौली दिल लाए वालिया, हौली हौली दिल लाए वालिया। हो